آج آپ کو ایک ایسے حریت پسند کی کہانی سنانی ہے جسے انگریز نے ڈاکو کہہ کر بدنام کیا۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ انگریز کسی سے بغض رکھیں تو انہیں بدعنوانی کا استعارہ بنا دیتے۔ یہ پروپیگینڈا ٹیکنیک سادہ لوگ اور غبی قسم کی قوموں پر بہت کارگر ثابت ہوتی۔ دراصل سامراج اور ریاستی طاقتیں اس طرح لوگوں کو آسانی سے بے وقوف بنا لیتی، یعنی بجائے اس کے کہ فرسودہ اور کھوکھلے نظام کی قلعی کھولی جائے، کسی ایک شخص یا خاندان کو اتنا ملعون کر دیا جاتا ہے کہ معاشرے میں ہر برائی کا ذمہ دار انہیں ہی سمجھا جانے لگتا ہے۔ انگریز نے یہ سب کچھ سکھ شاہی خاندان کے ساتھ کیا، اور یہی کچھ نظام کے ان باغیوں کے ساتھ کیا جو ان کے دیے ہوئے قحط، بھوک، لوٹ کھسوٹ کو نہیں مانتے تھے۔ ان میں کچھ ڈاکو بھی تھے، مثلاً ملنگی، سلطانہ اور نظام دین۔ یہ لوگ ڈاکو کہلائے ضرور، لیکن دراصل باغی تھے۔ سر سانو رئیس بھائی لے جا رہے ہیں، انہوں نے دس دینا اسی جانا کہڑے پاسے، انہوں نے قصور کو سیدھا ایویں سن باہر لے جانا۔ رئیس بھائی قصور شہر دا پتہ تھانوں؟ ہن بس یو ٹرن لے کے قصور شہر دے وچ وڑو۔ میں سمجھا سی بالکل ہاتھ اوپر آئے گا سر، وہ نہیں کو جانا پڑتا تھا۔ رئیس بھائی نے اتنے بھی تاتا دربار سمجھ لیا، اتنی بھی جلدی میں تمہیں نہیں بلایا۔ انگریز کے ہندوستان سے 30 کھرب ڈالر لوٹنے کے، لیکن دراصل یہ لوگ باغی تھے۔ انگریز کے ہندوستان سے 30 کھرب ڈالر لوٹنے کے باغی۔ انگریز کے ہندوستان سے فصل اٹھا کر برطانیہ میں فنشڈ پروڈکٹس بنانے اور پھر ہندوستان ہی میں بیچنے کے باغی۔ انگریز کے ظلم کے خلاف جو رائے بہادروں اور خان بہادروں کے ذریعے روا رکھا جاتا تھا، اس ظلم کے باغی۔ یہ لوگ ان رائے بہادروں، خان بہادروں کو لوٹتے۔ آپ اسے ایڈونچرزم کہہ سکتے ہیں، آپ اسے جذباتیت کہہ سکتے ہیں، آپ اسے سر پھرا ہونا کہہ سکتے ہیں، آپ اسے بد امنی پھیلانے والے عناصر کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کا مطمع نظر امپیریلزم کا انکار کرنا تھا۔ یہ وہ وقت ہے جب مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز مذہب کے نام پر کمیونلزم کو ڈیولپ کر رہی تھی، مذہب کے نام پر انسانوں کی تفریق کر رہی تھی، ان انسانوں کی جو ہزاروں برس سے اکٹھے رہتے آ رہے تھے۔ یہ وہ وقت ہے جب ایک غیر قوم کے سامنے سینہ سپر ہوئے لوگوں پر زمین تنگ کی جا رہی۔ یہ وہ وقت ہے جب اس دھرتی کے بیٹے انگریز کو نکال کر ایک سوشلسٹ، ایک انصاف پر مبنی نظام قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس میں ذات پات، طبقاتی تقسیم، معاشی استحصال سے پاک معاشرہ قائم ہو۔ انہیں ڈاکو کہا گیا، انہیں پھانسی پر چڑھایا گیا، انہیں گولی ماری گئی، ان کے خلاف سازشیں ہوئیں، انہیں سخت ترین عقوبت خانوں میں رکھا گیا۔ سر قبرستان ہو، سر ساڈے سجے بھی قبرستان ہے، کھبے بھی قبرستان ہے، دیواراں اونچیاں ہو گیا نے۔ تے او نظام دی قبر سر ایک دربار جا آئے گا، اودے نال ہی گیٹ ہے تے وڑدے نال ہی نظام دین صاحب دی قبر ہے۔ اے تو اندر چلنے ویکھنے ہاں، ٹھیک ہو پہنچا گے۔ ہم پچھلے برس نظام دین کی قبر پر آئے تھے اور ایک صاحب کی مدد سے ان کی قبر مل بھی گئی تھی، لیکن لگتا ہے وہ صاحب یا تو قبرستان سے چلے گئے اور یا پھر دنیا سے۔ ہم بات کر رہے تھے ان باغیوں کی جنہیں عقوبت خانوں میں رکھا گیا، مارا پیٹا گیا، چین سے باندھا گیا، عبرتناک سلوک کیا گیا ان کے ساتھ۔ آئی سی سانو پتہ ہے کہ
ਜੀ ਸਰ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਰਸ਼ੀਦ ਭਾਈ 1 2 3 ਕੋ ਦਰਬਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵੱਲ ਇਧਰੋਂ ਸਰ ਘੁੰਮਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਸਰ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਸਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾਲ ਕੇਕ ਵੀ ਸੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈਣਾ ਦੇ ਲੈਣਾ ਸੱਪ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ऐसी कहानियां आप भी सुनते होंगे। ये कहानियां खैर जगह जगह मिलती हैं। मैं तो एक मार्क्सिस्ट खानदान में पला बड़ा हूँ, लिहाजा माफोकल फितरत चीज़ों पर यकीन करते हुए खुद से अजनबियत महसूस होती। अलबत्ता व्यूअर्स इन कहानियों में बहुत दिलचस्पी लेते। मैं जब लाल हवेली गया और ये बताया कि वहाँ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखने में आएगी, मेरे देखने में तो नहीं आई, किसी और के देखने में आई, तो व्यूअर्स ने बहुत दिलचस्पी ली। सर एक को त्रास ही वो भी तुसी कर देता है मैं न तो यकीन करता हूँ ना मैंने कभी कुछ ऐसा देखा। आप भी इन खुराफात से निकल जाए। रशीदुल हसन मुकम्मल तौर पर भूल चुके हैं कि निजामुद्दीन कहाँ मदफून है और अब सिर्फ तीर तुक्के लगा रहे हैं। आपको पता तो है नहीं कब्रों का किधर जाना है। सर दरअसल ना ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੌਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹੂ ਚੌਕ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ ਖੱਬੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸੱਜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਕਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੋ ਹੋਈ ਹੈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੱਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰ ਤਰੀਕੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈਲੋ यार यहाँ ये कोई और कब्रिस्तान है ये वो है ही नहीं। जी सर ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੋ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਚ ਆਏ हैं हाँ कुछ लोग बैठे हैं, इनसे पूछते हैं। ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਛੱਟਾ ਪਾਟਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਖੱਬੇ ਵਾਲੀ ਪਾਸੇ ਅੱਛਾ ऐसो सड़का पाटन गया और खब्बे होना है फिर सज्जे होना है फिर खब्बे होना है जाके ख्वाजा साहब मेहरबानी शायद वो कब्र हमें मिल जाए। सर गल लेके आ गए हैं वो सड़क खुली थी जी काफी चौड़ी सी सड़क है नहीं पता लगा बस इन्होंने वो दरबार देखा है कब्र के पास दरबार की वजह से ना ये दरबार उस जैसा ही है सर एक तो दरबार के गुंबद भी हो जी रखते हैं एक स्टाइल दे कब्रां भी हो रही ने दरबार भी हो रही है दुकाना भी हो रही है सड़क भी हो रही है और सर को किਵੇਂ पता लगे कितने जा सर पेट्रोल पंप भी हो जाए मैं तो पेट्रोल पवा देंगा ਰਸ਼ੀਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਚੀਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ सड़का पाट गई है ना सर सड़क पाट गई है ए भाईजान सड़का जी तू पाटन गया तू खब्बे होना जे इधर उठ सड़का किसी ने पाटदियां नहीं देखी तो आज देख लो लेकिन सर ये जिस तरह बना हुआ है ना वो सही कह रहे थे पंजाबी में कि सड़का पाट गई हैं मतलब डिवाइड हो गई हैं ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਮਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰਤਾ ਨਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੋਂ ਖੱਬੇ ਹੋਣਾ ਜੀ तो खब्बे ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਐਡ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਪਾਟ ਗਈਆਂ ਇਹ ਕਾਪੀ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਟ ਗਿਆ ये वाली वो सड़क ये सड़क है मैंने कहा था उधर खुली छोटी सड़क ਸਰ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਆਬਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਬਸ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ नहीं वो ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਇਹੀ ਕਬਰਾਂ ਨੇ
ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਸਰ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਭੁੱਲਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਰਈਸ ਭਾਈ ਰੋਕ ਦਿਓ। इतना बड़ा आदमी, इस धरती का बेटा, उसकी कब्र गुमनाम है। जो कसूर है, कसूर का एक कब्रिस्तान है। वकील भाई दरबार आ गया जे, यही दरबार है। हाँ जी नहीं ये दरबार कहाँ है? ये वो दरबार ही नहीं है यार। चलो वो देखो ਉਹਦਾ ਗੁੰਬਦ, ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਗੁੰਬਦ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਗੁੰਬਦ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। नहीं नहीं यार ये नहीं है दरबार। ਸਰ ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਨਾ ਕਬਰ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਖਵਾਵਾਂਗਾ। पहले भी जेब तो खा रहा है। ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ। अगर ना तो कबर मिली तो दोपहर का खाना ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਮਾਸ਼ ਐਡਜਸਟ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। इन्हें भी निजामुद्दीन का इल्म नहीं, ये तो जानते ही नहीं है कि निजामुद्दीन है कौन, निजाम लोहार है कौन। तारीख की थोड़ी बहुत शुद्ध बुद्ध रखने वाले जानते होंगे कि निजाम लोहार कोई था, हालांकि उसकी कब्र पर कतबा लगा हुआ है और वो कब्र रोड के बिल्कुल करीब ही है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैं आया था, मैं यहाँ फिरता भी रहा था, बहुत घूमे थे यहाँ किसी भी कब्र पर एक गुंबद बनाएं और सब्ज रंग कर दें तो अचानक वालेहाना अकीदत पैदा हो जाएगी ईंटों के इस ढांचे से। और ये देखिए कि किसी को निजामुद्दीन का पता नहीं ये कौन था, कहाँ से आया, जान कुर्बान। हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने पर एक अंग्रेज से झगड़ा हुआ क्योंकि वो अंग्रेज हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को माँ की गाली बक रहा था, लिहाजा निजामुद्दीन ने उसे कत्ल कर दिया। अच्छा याद रखिए, असल मुहावरा गाली बकना ही होता है, गाली देना नहीं। हमारे जहन में बकने का सौती असर दरअसल भौंकने से मरबूत है, लिहाजा हमने मुहावरा ही बदल दिया। बहरहाल उस अंग्रेज ने गाली बकी और मारा गया। अच्छा सर काफी चेंज हो गया यहाँ हमें, वो दूसरी तरफ से लेके गए थे। यार कदीमी कब्रिस्तान चेंज ही होंगे ना। पता नहीं यार, हम इनफैक्ट अभी तक उस मज़ार के पास पहुंचे ही नहीं है जहाँ से वो खबर मिली है। सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੈलेंज ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੇਰੀ ਤਰਫ। यार खबर लगी यार खाने की साथ। अब किसी अंग्रेज का किसी हिंदुस्तानी के हाथों मारा जाना तो जाहिर है इस्तेमार के गैज़ो गज़ब को दावत देना ही था। उसने निजामुद्दीन की निगरानी शुरू कर दी। निजाम लोहार निजामुद्दीन ने न सिर्फ हिंदुस्तानी बागियों के लिए लोहा ढाल कर असलाह बनाना शुरू किया, बल्कि जीत सिंह और कुछ दूसरे अकालियों के साथ मिलकर अंग्रेज के परवरदा हिंदुस्तानियों को लूटना भी शुरू कर दिया। इसी असना में उसकी दोस्ती सूजा सिंह से हुई, जिसकी माँ गली गली बैन करती जा रही थी जब सूजा सिंह को गिरफ्तार किया गया। निजाम लोहार ने बड़ी महारत से, बड़ी जबरदस्त मनसूबाबंदी से सूजा सिंह को अंग्रेज से छुड़वाया। सूजा सिंह की माँ ने निजाम को अपना बेटा बनाया और माँ बन के दिखाया। मुझे तो मैक्सिम गोरकी की माँ याद आ जाती। मैक्सिम गोरकी का एक नॉवल है माँ, क्या खूबसूरत नॉवल। सूजे का घर निजाम का घर था, माँ अब दोनों की माँ थी। सूजा सिंह के घर में खुशी हो या गम सब साझा था। कई बार छापे पड़े, मुखबरियां हुई, अंग्रेजों को हर बार हजीमत उठाना पड़ी क्योंकि निजामुद्दीन और सूजा सिंह एक थे, उनका ग्रुप एक था। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं घेरा तंग होता जा रहा था। लेकिन निजामुद्दीन हाथ आने वाला नहीं था। उसने अंग्रेज के अमन अमान की कलई खोल दी, नाक में दम कर दिया अंग्रेज अफसरान। बगावत की लौ शोला बन चुकी। निजामुद्दीन का हर कदम अंग्रेज को हिंदुस्तान से निकालने के लिए था। वो एक आम आदमी था, लेकिन एक आम हिंदुस्तानी के दिल की आवाज था।
जिंदगी का मकसद ही ये ठहरा कि अंग्रेज को हिंदुस्तान से निकालना है। वो कुछ नहीं जानता था सिवाय इसके पंजाब छड़ो तहरीक में शामिल हुए निजाम लोहार और अंग्रेज सिपाहियों को कत्ल करना शुरू कर दिया। अंग्रेज जगह जगह निजाम लोहार की बू सूंघता फिरता। मेरे ख्याल से उस वाली साइड पे होगा। मेरा ख्याल है, मैं कंफर्म उस साइड पे लो तो देख रहे थे नीचे वैसे कब्रें पहले थी, यहाँ तो एक वो हुआ करता था या सीमेंट लग गया नहीं बढ़िया है ना। सर। ये बारिशों की वजह से ना वो सीमेंट वगैरह मिट्टी वगैरह डाल के ना, लास्ट टाइम जब आए हैं तो हमें केकरा वाले जंगल में लांग के गए हैं ना सर। वो ये है ना, ये देखें। ओए हाँ सही कह रहे हैं। एक अंग्रेज पुलिस ऑफिसर ने धोखे से निजाम को बातचीत के लिए बुलाया भी, लेकिन निजाम को पुलिस की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने पुलिस ऑफिसर को गोली मारी और छांगा मांगा के जंगलों में कहीं छुप गया। पंजाब छड़ो तहरीक जोरों पर थी कि सूजा सिंह की मां बीमार हो। सूजा ये सुनकर वापस आ गया। उधर निजाम लोहार के साथ एक अजीब वाक़या रूनुमा हुआ जिसने उसे बदल कर उसकी मुलाकात अपनी रूपोशी के दौरान कसूर के पास एक लड़की से हुई जिसका नाम मोहनी था। निजाम प्यासा था। उसने निजाम को अपनी गागर से पानी पिलाया और निजाम ने वज़ादारी में उसे कुछ पैसे देना चाहे तो वो बोली, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, ये तो निजाम डाकू छीन लेगा। निजाम धक से रह इस बात को दिल पर लिया और अपने मिशन को वाजे करना शुरू किया कि वो सिर्फ अंग्रेज का दुश्मन है, और वो भी इसलिए कि अंग्रेज ने उसकी जमीन पर गासिबाना कब्जा किया। वो कहत भूख बेचता है, लगान लगाता है, पंजाब के किसानों की मेहनत से अपने कॉफर्स भरता है। उसका मकसद महज कत्लो गारतगरी नहीं बल्कि हिंदुस्तान की अंग्रेजों से, एक गैर कौम से जो हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाए हुए है, नफरत का इजहार है, ताकि वो हिंदुस्तान छोड़ दें, चले जाएं, वापस चले जाएं। इंसान से नफरत का इजहार नहीं, इस्तेमार से नफरत का इजहार है, साम्राज्य से नफरत का इजहार है, इस्तेसाल से नफरत का इजहार। निजाम ने मोनी को राखी बांधी और अहद किया कि मैं अपने मिशन को वाजे करूं, हर औरत की हुर्मत का पास करूं, उसे कोई इनसिक्योरिटी होने नहीं दूं। कोई लड़की, कोई औरत ये नहीं सोचेगी कि निजाम उससे कुछ छीन ले, वो उसे कोई डाकू नहीं सकता। मैं तो इन साहब से निजाम लोहार की कब्र ही पूछ रहा था, लेकिन ये कोई नशा करने वाले साहब हैं जो हमें कहीं साइड पर आने का कह रहे हैं। भाई चीज हो गया। निजाम दीनदयाल कब्र कितने है? निजाम लोहार मैं इधर का नहीं हूँ भाई, मैं तो गुजरात का हूँ। उधर पूछो पहले पूछ के गया की दसिया ना ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ यार शीर साहब फोन पर मारे ने कि कब्रां जो है ज्यादा बन जाती है तो नक्शा चेंज हो जाता है। अरे कई कब्रां यार कब्रिस्तान है, सोसाइटी बनी है नहीं होते यार, पट्टी लगी हुई है, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਖਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, हाँ जी हाँ जी। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ नामुद्दीन कौन है? दसो सही सामने। बहुत जबरदस्त फ्रीडम फाइटर थे। खैर उनकी कहानी हम सुना देंगे कि ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੰਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਗੁੰਬਦ ਥੋੜਾ ਮਖਰੂਤੀ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ आगे चलो फिर मेरे नाल आइए। शीदुल हसन ने उनके हाथ में चाकू देख लिया और मुझे साथ न जाने का मशवरा दिया। सर वो बंदे ने कोई चाकू नहीं, वो किसी की तो करना चाह गया। मैंने चाकू भी देखा, मुझे तो इसने इशारा किया है कि अहमद आल नहीं जाना, वो सर वो उसने हाथ में ऐसे किया है। तो हमें ये भी कहा जा रहा है। सर हमें कमन कर सर वो जो जंगल नहीं था पीछे, जो पिछली दफा देखा था, उस पे वो क्या कहते हैं, हमें लेके जाएगा। बहुत अच्छा किया। हम आ गए हैं इधर कुछ पुरानी खबरों की तरफ। निजाम लोहार की कब्र को ढूंढते ढूंढते, ये बहुत पुरानी कब्रें हैं यहाँ, दो मंजिला कब्रें हैं ये 200-250-300 साल पुरानी कब्रें लगती हैं। हमने ऐसी कब्रें फारसियों के कब्रिस्तान में देखी थी। सर जरा गौर करो इस चीज पे और थले। हाँ ये मिट्टी और सही कह रहे हो,
मिट्टी और चूना नहीं है, मिट्टी है, मिट्टी और चूना से कह रहे हैं। बहुत ਜਿਹੜਾ ਚੁਨਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਰ, ਪੂਰੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੇ 2-3 डिफरेंट कब्रां ने। बहरहाल निजाम लोहार ने राय बहादुरों और खान बहादुरों को लूटना नहीं छोड़ा। मोहनी की शादी में भी उसने इसी लूटमार का माल पहुंचा। उधर सूजा अपनी माँ की अयादत करते करते एक लड़की छाम्या की मोहब्बत में गिरफ्तार हो। निजाम को जब इस मोहब्बत का इल्म हुआ तो बहुत नाराज हुआ, क्योंकि उसके ख्याल में ऐसे नाजुक जज्बात मकसद से हटाते। कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेज ने साजिश से छाम्या को उसके साथ जोड़ा। बहरहाल छाम्या ने उसे समझाया कि कत्ल तो निजाम करता है, लेकिन फांसी तुम भी उसके साथ चढ़ जाओगे, और मैं क्या करूं। सूजा सिंह के अंदर मौजूद वो हुर्रियत पसंद जो हिंदुस्तानियों को अंग्रेज से बचाने की जंग लड़ रहा था, छाम्या की मोहब्बत को बचाने निकल पड़ा। उसने 4 मुरब्बे जमीन के एवज अंग्रेज को बता दिया कि आज रात निजाम लोहार माँ से मिलने हमारे घर आएगा। अंग्रेज ने उस कमरे को जहां निजाम सो रहा था घेर लिया और छत को तोड़ दिया। निजाम ने उनकी गोलियों से बचने के लिए लोहे का हेलमेट पहना, अपने घोड़े को आवाज दी, लेकिन उस हेलमेट की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सहन में अपने घोड़े को पुचकारा, लेकिन जल्दी में दरवाजे से टकराया और गिरकर बेहोश हो। पुलिस 48 घंटे तक गोलियां बरसाती रही, 48 घंटे तक। 2 दिन बाद निजाम की लाश को निकाला गया, लेकिन आजादी के मतवालों की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कहानी फिर जन्म लेती है एक मुंह बोली माँ की मोहब्बत में, जिसका दीन फर्क, धर्म फर्क, लेकिन जज्बा फर्क, इनकलाब का जज्बा, मोहब्बत का जज्बा मुश्तरक था। सूजा सिंह की माँ ने सूजा सिंह को गोली मार दी और उसकी लाश पर खड़े होकर कहा, जीरिया गवाह रही, मैनू अपना दुध नहीं बख्शा, मैंने अपनी माँ पंजाब धरती नाल धोखा कीता, गद्दारी की थी, मैं इनू कदी माफ नहीं करा। उर्दू तर्जुमा कुछ यूं है कि जीरा जो कि दोनों का एक मुश्तरक दोस्त, गवाह रहना मैंने अपने बेटे को अपना दूध नहीं बख्शा, क्योंकि इसने पंजाबियों से, पंजाब धरती से गद्दारी की है, अपनी माँ से गद्दारी की। वो जो कुरान में उतर गया ना, हाँ ये गुंबद है, ये है वो गुंबद, और ये मुख्तलिफ है। ये वो आम जो ग्रीन वाले गुंबद होते हैं उस टाइप का नहीं है, इसका जरा हुजूम ज्यादा है जी, बहुत ज्यादा है। सर ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਇ ਬਕੂਆ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ। हाँ ले आए ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਾਫ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਦੇਖੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਰਸ਼ੀਦ ਭਾਈ, 4 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਪਿਛਲਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਜੀ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਉਹਦਾ ਪੇਜ ਫਰੈਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਪੇਜ ਫਰੈਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ। हाँ बस लाहौर छड़ के चले जाओ, 3 साल बाद वापस आना तो अपना महला पहचान के दसते ना, तो अपना महला वो भी लगता है। ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਕਸਦ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਮਰਾ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਯਕੀਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰ- ਉਹ ਤੇ ਫਿਕਸ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਬਰ भी तो लगी उन्हें। इसके पीछे है, मुझे याद आई, मुझे इसी की तो मिल नहीं रहा था, यही वाला मजा है। इसके पीछे है, तो मैं लेके जाता हूं, उसी मेरी नेविगेशन स्किल में। ओके सर। सामने निजामुद्दीन की कब्र है, जहां कोई फूल चढ़ाने वाला नहीं, क्योंकि किसी को निजाम लोहार का पता ही नहीं। अंग्रेज ने लोगों को निजाम के जनाजे में शिरकत करने से रोक दिया और ये कहा कि अगर किसी को शिरकत करनी है तो 2 रुपए अदा करना। कैसी घटिया जहनीत थी अंग्रेज की। लेकिन देखते ही देखते 35,000 रुपए इकट्ठे, लोग जूक दर जूक हर जगह से निजाम के जनाजे में शरीक होने लगे, क्योंकि हिंदुस्तानी निजाम के जनाजे में नहीं, अपनी उमंगों की तर्जुमानी के लिए आ रहे थे। निजाम हर दिल की आवाज थी, किसी भी मजहबी वाबस्तगी से बहुत दूर, बहुत ऊंचा, बहुत आगे।
ایک پنجابی ہندوستانی جو انگریز کو اپنی زمین سے نکالنا چاہتا تھا تاکہ کسانوں کو لگان سے چھٹکارا مل سکے، انگریز کے ظلم کو ختم کیا جائے، نظام اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ وہ کامیابی دیکھنے کے لیے زندہ تو نہیں رہا، لیکن یہ انسنگ ہیروز ہیں اس دھرتی کے، رائے احمد خان خان، نظام لوہا، دلہ بھٹی اور بھگت سنگھ کے سب انقلاب دوست ساتھی۔ یہ نظام دین کی قبر ہے، اسے محفوظ کیا جانا چاہیے، اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ ایک مسلمان تھا جس کے ساتھ اگر ایک سکھ نے غداری کی تو اس سکھ کی ماں نے اسے گولی مار دی۔ پنجاب کی ماں پر حرف نہیں آتا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، رائے دیجیے، اپنے کامنٹ کیجیے، آپ کی رائے، آپ کے کامنٹ ہمارے لیے بہت معتبر ہے۔ نہ رہا جنون رخ وفا، یہ رسم یہ دار کرو گے کیا، جنہیں جرم عشق پہ ناز تھا وہ گنہگار چلے گا۔